محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے خوف خدا کی وجہ سے اسے حرام سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان عطا کرے گا جس کی لذت وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرے گا۔ الحمدللہ واللہ اعلم بالصواب۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ طلباء کی بہترین مستقبل و سرکاری اسکولز میں بھی کارپوریٹ طرز کی سہولت کی فراہمی۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR کا مقصد۔ ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی انہوں نے کمر پلی منڈل میں ہمارا گاؤں ہمارا اسکول کے تحت کاموں کا کیا آغاز۔ ZP چیئرمین وٹھل راؤ اور ضلع کلکٹر نے کی شرکت۔ بلال سرپنچ کی آخری رسومات میں کی شرکت و دیا فرصت۔ وہ بودھن شہر میں منعقدہ سائنس فیئر میں شرکت کرتے ہوئے طلباء کی ہمت افزائی۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کی اہلیہ عائشہ فاطمہ عامر کا مصروف ترین دورہ بودھن۔ کانگریس صدر راہل گاندھی اور ریاستی کانگریس صدر ریونت ریڈی کیوں کسانوں کے مسائل نظر انداز کر رہے ہیں یا وہ عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ PUC کمیٹی چیئرمین وارمر MLA جیون ریڈی کا سوال۔ کانگریس کے گھمنڈ و فخر کے سبب کانگریس ہر انتخابات میں ہار رہی کیونکہ کانگریس MP پارلیمنٹ میں تلنگانہ کے کسانوں کی تائید نہیں کر رہی۔ متحدہ ضلع MLC کے کویتا کا سوال۔ SIO نظام آباد کی جانب سے 1 اپریل کو سرکاری ملازمتوں کے مطابق 1 روزہ میگا اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سخت محنت و لگن سے کوئی بھی منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔ طلباء سائنس کے میدان میں دلچسپی لیں اور ہندوستان کے نامور سائنسدانوں کی فہرست میں بودھن کا نام بھی شامل کرنے کا عزم کریں۔ بودھن میں منعقدہ سائنس فیئر تقریب سے رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کی اہلیہ عائشہ فاطمہ عامر کا خطاب۔ آج رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کی اہلیہ عائشہ فاطمہ عامر، جو ہر وقت طلباء کو تعلیم کے میدان میں ترقی کے لیے کافی جستجو و دلچسپی کے ساتھ خدمت انجام دے رہی ہیں، اور آج جن کے ہاتھوں بودھن کے اقرا ماڈل اسکول میں منعقدہ سائنس فیئر کا افتتاح کرتے ہوئے اس سائنس فیئر کا مکمل مشاہدہ کرتے ہوئے طلباء کی صلاحیتوں و سائنس دلچسپی کو دیکھ کر یہاں کے طلباء و اساتذہ کی ستائش کی اور کہا کہ طلباء کو ستائش میں دلچسپی و محنت کے ساتھ اور بھی سیکھے تاکہ آنے والے ہندوستان کے عظیم سائنسدانوں کے نام میں بودھن کا نام بھی شامل ہو۔ اور انہوں نے مزید طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے میزائل مین کہلانے والے APJ عبدالکلام نے بھی صرف ایک سرکاری اسکول سے اپنی بنیادی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن ان کی محنت و لگن نے ان کو کافی بڑے مقام تک پہنچایا ہے۔ اس موقع پر اسکول انتظامیہ کی جانب سے ان کا شاندار پیمانے پر استقبال کرتے ہوئے ان کو تہنیت پیش کی۔ بہت اچھا سائنس فیئر یہاں پر لگایا ہے۔ سائنس فیئر میں آ کے ایسا لگ رہا ہے بچپنا واپس سے پھر میں جی رہی ہوں اور اسکول میں پھر میں واپس آ گئی ایسا لگ رہا ہے مجھے۔ بچوں نے یہاں پر کافی محنت کر کے بہت اچھے اچھے ماڈلز بنائے ہیں، چاہے وہ سولر سسٹم کے رہنے دیجیے، چاہے وہ واٹر ہارویسٹنگ کے رہنے دیجیے، چاہے وہ مونیومنٹس رہنے دیجیے، چاہے وہ گولکنڈا رہنے دیجیے، چاہے وہ پانی جو بھی واٹر کے پرابلمس ہو رہے ہیں، یا پھر ہمارا ہائی ٹیک سٹی کا جو کیبل برج ہے، ہر ایک ماڈل کو بہت اچھی طرح سے بچوں نے ریڈ کیا ہے اور ٹیچرز نے بھی کافی اچھا ان کو ہیلپ کیا ہے۔ اور بچوں کا پریزنٹیشن دیکھتے ہوئے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے کون سی بھی کمی چھوڑی ہے کہیں بھی۔ بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے اور ایسے ہی یہ بچے آگے 1 اپریل 2022 کو میگا اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد۔ تمام طلباء و نوجوان موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ SIO نظام آباد۔
تلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے ریاست بھر میں 90,000 مخلوعات جائیداد کا اعلامیہ جاری کیا تھا، تاحال امتحان کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ریاست بھر میں بالخصوص شہر نظام آباد کے طلباء و نوجوان بے روزگاری کے سبب اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے نا امیدی و اسٹریس کا ماحول بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ صورتحال کا جائزہ لے کر SIO شہر نظام آباد نے طلباء و نوجوانوں کی اس سمت میں رہنمائی و ٹریننگ کا بیڑا اپنے اوپر لینے کا اعادہ کیا ہے۔ اس ضمن میں پروگرام بتاریخ 1 اپریل 2022 بروز جمعہ بوقت شام 5 بجے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ماہرین و تجربے کار افراد حکومت سے جاری کردہ 90,000 جائیدادوں کی مکمل معلومات، تیاری، مواد و رہنمائی پر طلباء و نوجوانوں سے مخاطب ہوں گے۔ تمام طلباء و نوجوانان بالخصوص گروپس کی تیاری کرنے والوں سے اس پروگرام میں شرکت کی درخواست کی ہے۔ گرلز بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ شرکت کے لیے درخواست فارم پر کرنا لازمی ہوگا، جو آپ کو SIO نظام آباد کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں مل جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے 8367395945 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SIO نظام آباد اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن ہمیشہ جو ہے سو طلباء و نوجوانوں کی رہنمائی، طلباء و نوجوانوں کی تزکیہ اور طلباء و نوجوانوں کا جو ہے سو تعلیمی اداروں پر ہمیشہ نظر رکھتی ہے، اور اسی سلسلے میں جو تلنگانہ کے جابس نکلے ہیں اس سلسلے میں 1 تاریخ کو ایک ریکروٹمنٹ کا اورینٹیشن پروگرام رکھا گیا ہے راجیو گاندھی آڈیٹوریم میں۔ نظام آباد کے خاص طور پر نظام آباد کے طلباء نوجوان سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گوگل فارم کو رجسٹر کریں اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت کریں۔ جو اعلانات کیے گئے ہیں مختلف گروپس اور SI کانسٹیبل کے لیے اور ٹیچرز کے لیے جو ریکروٹمنٹس ہونے والے ہیں، اس کے سلسلے میں SIO نے بہت ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ نظامت کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو جاب اسپیرنٹس ہیں، ان لوگوں کو گائیڈنس کرنے کے لیے اور ان کو اورینٹیشن دینے کے لیے ہم نے ایک پروگرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں 1 اپریل کو شام 5 بجے ہم راجیو گاندھی آڈیٹوریم میں حیدرآباد کے مختلف ایکسپرٹس کو بلا کر ایک بہت اچھا MA لطیف نے رمضان کے پیش نظر ASP بھینسے سے وقت میں اضافے اور چھوٹے تاجروں کے ساتھ نرمی برتنے کے متعلق پیش کی درخواست۔ بھینسہ شہر کے کانگریس قائد آل انڈیا پولنگ بوتھ ریاستی ترجمان MA لطیف نے DSP دفتر پہنچ کر IPS آفیسر ایڈیشنل SP کرن کھرے سے ملاقات کی اور ایک تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے آنے والے رمضان کے پیش نظر چھوٹے تاجروں کے ساتھ نرمی فراہم کیے جانے کی درخواست کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایڈیشنل SP کرن کھرے کی جانب سے کی جا رہی خدمات کی بھی سراہنا کرتے ہوئے بھینسہ شہر کے حالات کو بنائے رکھنے پر اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر سپر سلام محمد قریشی، مقیم قریشی کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ ماہ رمضان کے پیش نظر صفا بیت المال شاخ بھینسے کی جانب سے غربا میں مفت راشن کی تقسیم عمل میں آئی۔ صفا بیت المال شاخ بھینسے کے زیر اہتمام نوبل ہائی اسکول مدینہ کالونی میں مفت رمضان راشن تقسیم کا پروگرام عمل میں آیا، جس کی کارروائی خادم صفا شیخ عرفان نے چلائی۔ اس پروگرام میں 300 مستحق ضرورت مند خاندانوں میں رمضان کے پیش نظر 4 لاکھ روپے کے مالیتی مفت رمضان راشن کٹس مولانا شاہد غفران، بھینسہ ٹاؤن SE ملک، صدر حافظ منیر الدین، صدر صفا بیت المال شاخ بھینسے کے ہاتھوں تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر اکبر خان، صدر اردو پریس کلب بھینسہ، سینئر صحافی پاشا محمد رضی کے علاوہ خدام صفا بیت المال مفتی عرفان قاسمی، شیخ عرفان، عبدالرزاق، شیخ داؤد، محمد اذان و دیگر موجود تھے۔ یہ بھی بتایا گیا 6 سال پہلے اس کا بستی کے اندر وجود عمل میں آیا، اور یہ ایسی فعال اور متحرک تنظیم ہے جو ہر وقت بلا مذہب و ملت سب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ صفا کے جو کارکنان ہیں، ایمرجنسی کے موقع پر خون کا عطیہ دینا، اسی طرح ہر ماہ بستی کے جو مستحق لوگ ہیں، جن کا کوئی سرپرست یا جن کا کوئی پرسان حال میں، ایسے لوگوں کی مکمل تحقیق کرنے کے بعد ان کے وظائف ہے۔ سرما کے موسم میں گرم کپڑوں کا انتظام، اچانک کسی کے گھر میں کوئی آفت آ گئی، بیمار ہو گئے، ایمرجنسی ہو گئی۔
बेलाल देहात की सरपंच बी लता मुख्तसर सी अदालत के बाइस इंतकाल होने की बिना पर मुनाकिदा आखिरी रसूमात में रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की शरीक हयात आयशा फातिमा आमिर ने शिरकत करते हुए दिया पुरसा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की शरीक हयात मोहतरमा आयशा फातिमा आमिर साहिबा ने बेलाल देहात के सरपंच बुरी लता मुख्तसर सी अदालत के 22 आज सुबह के अवलिन सातों में इंतकाल कर जाने की वजह से मुनक़िद होने वाली आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश करते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ लक्ष्मी गंगा रेड्डी ZPTC, श्रीमती बी सावित्री राजेश्वर, मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंच MPTC, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान ने भारी तादाद में शिरकत की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब फैसले में आयन की मुतअद्दिद शक़ों को नजरअंदाज कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला का अहम इजलास एक्सा सोलकोट और सरकारी स्कूलों में गीता पढ़ाए जाने की लाजिमियत जैसे अहम मसाइल पर तबादले ख्याल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला की एक अहम मीटिंग 27 मार्च 2022 को हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हुसैनी नदवी की सदारत में मुनक़िद हुई। इस नशिस्त में कई अहम उमूर पर तबादले और कई अहम फैसले किए गए। इस इजलास की कार्रवाई जनरल सेक्रेटरी बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने चलाई। इफ्तिताही कलिमात में बोर्ड के 27वें इजलास कानपुर से अब तक की सरगर्मियों का खुलासा पेश किया गया। इसके बाद हिजाब के ताल्लुक से कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर मजलिस आमिला में तफसील से इजहार ख्याल हुआ। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े के सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बोर्ड ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हाई कोर्ट ने कहा था कि खवातीन के जरिए हेड स्कार्फ पहनना इस्लाम का लाजमी मजहबी रिवाज नहीं है। इस सिलसिले में बोर्ड ने 2 दीगर अर्जी गुजारों मुंसा बशरी और जलीसा सुल्ताना यासिन के साथ अपने सेक्रेटरी मोहम्मद फजल रहम के जरिए खुसूसी इजाजत पिटीशन दायर की है। इससे कबल 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया। दरअसल उत्तराखंड की नौमंतखबा बीजेपी की क़यादत वाली सरकार के जरिए एक्सा सोलकोड नाफिज करने का अमल शुरू किए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मजहबी अक़लियतों को भी एक्सा सोलकोड के हवाले से इतराज है। कांग्रेस और बीजेपी को धान की खरीदारी मामले से ज्यादा अवाम के वोटों के जरिए मिलने वाले ओहदे से लगाव होने का आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जिले TRS सदर जीवन रेड्डी ने मीडिया के जरिए किया इजहार। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जिले TRS सदर जीवन रेड्डी ने मीडिया के जरिए खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए किसानों को राइतु बंधु, राइतु बीमा, दीगर मुनफरिद स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुंचाकर किसानों की दोस्त हुकूमत के तौर पर किसानों के दिलों में राज करने का इजहार करते हुए बताया कि अनाज के ज़ख़ीरे की खरीदारी अमल में लाने के लिए रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासती वज़ीरा व दीगर अवामी नुमाइंदों की जानिब से शुरू करदा एहतजाज को धान के ज़ख़ीरे को खरीदी अमल में लाने तक एहतजाज को ख़त्म न करते हुए मोटर को मीटर नस्ब न करने तारीख TRS रखने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान हमारे रियासती वज़ीरा ने कई बार अपने ओहदों से मुस्तफ़ा हो गए, लेकिन वही कांग्रेस को किसानों से खुलूस व लगाव साबित करने के लिए एक मरतबा इस्तीफा देने का सवाल किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को धान की खरीदी के मामले से ज्यादा अवाम के वोटों के जरिए मिलने वाले ओहदे से लगाव होने का इजहार किया। ప్రధానంగా ఆర్మూర్కు సంబంధించినటువంటి 2 అంశాలు ప్రజలు సమస్యలకు గురి కావద్దని ఈ రైతు బీమా ఏదైతే ఉందో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇప్పటికే దాదాపుగా 3,500 కోట్లకు పైన డబ్బులను ఆకస్మికంగా చనిపోయిన రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి రైతు ఏడ్చిన రాజ్యం బాగుపడదు, ఎద్దేడిచిన వ్యవసాయం బాగుపడదు. అట్లాంటి రైతులు ఆకస్మికంగా మరణిస్తే వారి కుటుంబాలు రోడ్డు మీద ఉండొద్దని, వారి పిల్లలకు ఎడ్యుకేషన్కి ఇబ్బంది ఉండొద్దని, రైతుల పిల్లలు బాగుపడాలని, ఇబ్బందులు ఉండద్ది, వారి తల్లిదండ్రులు లేకున్నా ఒకవేళ మరణిస్తే అట్లాంటి వారికి మేము ఒక మేనమామగా అన్నదమ్ముడుగా తోడుంటామని చెప్పి 48 గంటల్లో రైతు బీమా కార్యక్రమాన్ని 5 లక్షల రూపాయలు పథకం ఇచ్చినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి తెలంగాణ రైతుల తరపున ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యేగా నేను నిజామాబాద్ జిల్లా TRS ప్రెసిడెంట్గా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। आलमी यौम टीबी की रोकथाम के मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम निकाली गई रैली को कलेक्टर नारायण रेड्डी ने झंडा लहराकर आगाज अमल में लाया। डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल डिपार्टमेंट की ज़रिए निगरानी में आलमी यौम टीबी की रोकथाम के पेश नज़र निकाली गई रैली को कलेक्टर नारायण रेड्डी ने झंडा लहराकर आगाज अमल में लाने के अलावा शिरकत करते हुए टीबी के खात्मे के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले इक़दामात व तिब्बी इमदाद के मुतालिक तमाम तरीन तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए जिले के टीबी कंट्रोल शोबे के ओहदेदारों को शोर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में डॉक्टर वेंकन्ना गंगाधर, जिले के तीव्र सेहत महकमे के तहत टीबी कंट्रोल शोबे के ओहदेदार डॉक्टर सुदर्शना, डिप्टी DMNHO डॉक्टर तुकाराम, टीबी कंट्रोल सेक्शन के कोऑर्डिनेटर रवि गौड़, स्नेहा सोसाइटी के सेक्रेटरी S सिदैया, नर्सिंग कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। टीबी कंट्रोल शोबे के ओहदेदारों की कारकर्दगी काबिल सताइश। शहर के अम्बेडकर भवन में मुनक़िदा आलमी यौम टीबी प्रोग्राम से मियां नीतू किरण का खिताब। ज़िले निज़ामाबाद के अम्बेडकर भवन में मुनाक़िद होने वाले आलमी यौम टीबी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मियां नीतू किरण शेखर ने शिरकत करते हुए टीबी की रोकथाम के लिए जिले के तिब्बी अमले की जानिब से जारी कोशिशों के बायस जिले को कौमी सतह पर मुसलसल 2 साल से अवार्ड हासिल हो रहा है और जिले को शानदार पहचान हासिल हुई है। इन्होंने कहा कि टीबी के खात्मे के लिए हमारा जिला कौमी सतह पर आला तरीन मियारात पर अमल करते हुए टीबी मर्ज पर काबू पाने की कोशिश करने के बिना पर कौमी सतह पर कांसे का तमगा हासिल होना काफी खुशाइन बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में HOD एंड DM सुदर्शनम, IMA सेक्रेटरी डॉक्टर जलकम तिरुपति राव, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर राजा लक्ष्मी, NHM सुपरिंटेंडेंट अगुस्टिन नेहरू, युवा केंद्र कोऑर्डिनेटर बिलाल व दीगर ने शिरकत की। పెట్టుబడి అంటే డబ్బులే అవసరం లేదు, దీనికి డబ్బులతో కాదు. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ కావాల్సింది సమతుల ఆహారం, పౌష్టిక ఆహారం. ముఖ్యంగా అది ఒక మన జీవితంలో మనకు విలువైనదంటూ ఏదైనా ఉంది అంటే అదొక సమయం. निजामाबाद पुलिस कमिश्नर KR नागराजू ने मुतवफ़्फ़ी पुलिस के अहलकारों को 30 लाख रुपए का चेक किया हवाले। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने केसरी निवास नामी हेड कांस्टेबल जनवरी की 4 तारीख को बोधन पुलिस स्टेशन में कोर्ट लाइन्स ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के दौरान एक सड़क हादसे में फौत होने के बिना पर बोधन SBI ब्रांच की जानिब से पुलिस पैकेज स्कीम के तहत एक्सीडेंट डेथ के जरिए क्लेम हुए 30 लाख रुपए का चेक हेड कांस्टेबल केसरी निवास के शरीकिया श्रीमती इंदिरा को हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V अरविंद बाबू, एडिशनल DCP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर विरित जी निजामाबाद, AGM M श्रीकांत, SBI बोधन ब्रांच मैनेजर RK श्रीवास्तु, RBO चीफ मैनेजर श्रीमती A अनुराधा, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्रीहरि, पुलिस एसोसिएशन सदर शकील पाशा व दीगर ने शिरकत की। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने धान के ज़ख़ीरे की खरीदारी के मामले पर तेलंगाना रुकने पार्लियामेंट की खुलकर तायद करने की ख्वाहिश की। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने ट्विटर के जरिए खिताब करते हुए कहा कि धान के ज़ख़ीरे की खरीदारी के मामले पर रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी सियासी शोहरत हासिल करने के लिए बज़रिए ट्विटर के जरिए इजहार हमदर्दी पेश करना आपको जेब नहीं देने का इजहार करते हुए बताया कि पंजाब व हरियाणा में धान के ज़ख़ीरे को खरीदते हुए दीगर रियासतों में काश्त किए गए पैदावार को खरीदने के मामले में दोहरे मियार से गुरेज करके तमाम रियासतों में काश्त के लिए अनाज के ज़ख़ीरे को खरीदते हुए किसानों को इंसाफ फराहम करे। इन्होंने मजीद कहा कि किसानों से इतनी ही हमदर्दी है तो तेलंगाना के रुकने पार्लियामेंट की खुलकर तायद करने की ख्वाहिश की। गवर्नमेंट मदारिस में तालीमी मियार को कॉर्पोरेट तर्ज के बमुकाबिल तरक्की देने की गर्ज से ही CM KCR ने हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम का किया आगाज। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले मना ओवरू मना बड़ी प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूल्स में मुहैया किए जाने वाले सहूलियात का जायजा लेते हुए कमरपल्ली मंडल उपलूर देहात के जिले परिषद हाई स्कूल का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ ZP चेयरमैन विट्ठल राव, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तमाम सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत
तेलंगाना ने मना ओवरू मना बड़ी प्रोग्राम को रूबे अमल में लाने के मकसद के तहत 60 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी कामों का संगे बुनियाद रखने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले तलबा को मियारी तालीम की फ्राहमी के लिए मना ओवरू मना बड़ी की प्रोग्राम के तहत रियासती सतह पर 26,000 सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी के लिए हुकूमत 7,200 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। ఐకేపీ మహిళలు లోన్ల వడ్డీ విషయం అది కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం. డబ్బు లేకనే ఇవ్వాలి, డబ్బు ఉంటే కాదు, డబ్బు జమ కాక గవర్నమెంట్ డబ్బు లేక ఇవ్వాలి. అది కూడా వచ్చే నెల నుంచి ఒక 3-4 విడతలు ఇప్పుడు లెక్కలు తెప్పిస్తున్నాం. మీకు కూడా తెలుసుకుంటారు ఏ జిల్లాలో ఏ గ్రామంలో ఎంత వెళ్తున్నాయో లెక్కలు తెప్పిస్తున్నాం. అవి కూడా వచ్చే నెల నుంచి ఆ వడ్డీ పైసలు కూడా పడతాయని చెప్పి మీ అందరికి నేను నా ఆకర్షణ మనం చేస్తా ఉన్నా. మూడోది ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు కట్టిస్తామని కూడా మాట ఇచ్చాం. ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ జాగా దొరికిందో అక్కడ కట్టిస్తున్నాం. ఆడ జరుగుతున్నాయి, మోకాలు జరుగుతున్నాయి, బీంగలు జరుగుతున్నాయి, వేల్పుల్లో జరుగుతున్నాయి, ఒక 10-12 జాగాలు జరుగుతున్నాయి. పాల్గొండలో కాబట్టి ఖచ్చితంగా రైతులందరూ పోరాటంలో ముందుండాలి. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం మన ధాన్యం కొన్నదంటుందో మళ్ళీ డెలిగేషన్ ఉంటుంది మంత్రులది, ముఖ్యమంత్రిది. కావాలంటే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిపిస్తారు. మేమంతా ఎమ్మెల్సీలు కానీ, ఎమ్మెల్యేలు కానీ, జడ్పీ చైర్మన్ కానీ, మంత్రులు కానీ, ఎంపీలు కానీ స్కూల్లో కావాల్సిన వస్తువులు, రెండవది స్కూల్లో కావాల్సిన టీచింగ్ స్టాఫ్. ప్రభుత్వం ఇప్పుడు స్కూల్లో కావాల్సిన వస్తువుల మీద ఫోకస్ చేసుకుంటూ ప్రతి స్కూల్లో కూడా స్టాండర్డ్ లో మంత్రి గారు చూస్తూ ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి. మరి తప్పకుండా ఇంకా ముందుకేసి పర్సెంటేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటుందని చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న అన్ని స్కూల్లో కూడా ప్రభుత్వం ఏదైతే ఆశిస్తుందో, అంటే కార్పొరేట్ స్కూల్లో ఏ విధంగా పిల్లలకు మంచి టాయిలెట్స్, మంచి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ, మంచి క్లాస్ రూమ్స్. आइंदा 5 दिनों तक गर्मी की लहर जारी रहेगी। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी है। मार्च के अवाइल से ही गर्मी में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन दूसरे और तीसरे हफ्ते में ही शदीद तमाज़त में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान गर्मी की शदीद लहर जारी रहने की पेशकयासी की है। ताहाल अजीम तरीन दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसमें मज़ीद 3 डिग्री के इजाफे का इम्कान है। मार्च में ही गर्मी का ये हाल है तो अप्रैल और इसकी आगे क्या हाल होगा, ये सोचकर अवाम तशवीश में है। पेट्रोल और डीजल पर 7 दिन में 4 रुपये का इजाफा। ऑयल कंपनियों की जानिब से 7 दिन के दौरान ईंधन की कीमतों में 6 मरतबा इजाफा किया गया है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 4 रुपये का इजाफा हो गया है। पीर को भी पेट्रोल पर 30 पैसे और डीजल पर 35 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 112.71 रुपये और फी लीटर डीजल की कीमत 99.07 रुपये हो गई, जबकि मुंबई में फी लीटर पेट्रोल 114.19 रुपये और 98.50 रुपये फी लीटर डीजल दस्तियाब हो रहा है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल 108.85 रुपये और फी लीटर डीजल 93.92 रुपये। चेन्नई में फी लीटर पेट्रोल 105.18 रुपये और फी लीटर डीजल 95.33 रुपये में फरोख्त हो रहा है। साबिक एमपी मधु गौड याशकी एक पॉलिटिकल टूरिस्ट को भला रियासत तेलंगाना में होने वाले वाक़यात से आगाही न होने के बावजूद भी बेजा इल्ज़ामात आयद करना अखलाकी दिवालियापन में मुब्तला होने का एमएलसी वीजी गौड ने मीडिया के जरिए किया खिताब। निजामाबाद प्रेस क्लब में क़याम अमल में लाए गए इजलास में एमएलसी वीजी गौड ने कांग्रेस क़ायद मधु याशकी गौड की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मधु याशकी गौड एक पॉलिटिकल टूरिस्ट है। इनको रियासत तेलंगाना में होने वाले वाक़यात से आगाही नहीं, लेकिन इनकी जानिब से मुत्तहिदा ज़िला निजामाबाद एमएलसी के कविता पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने का कोई अखलाकी हक हासिल न होने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि पहले कांग्रेस की डूबती कश्ती को बचाने
लगाने की बात कहा कि एमएलसी के कविता पर फिर दोबारा बेवजह इल्जामात आयद करने की बिना पर शहर में कदम न रखने देने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको चेयरमैन एस अलीम, साबिक़ म्यूनसिपल फ्लो लीडर मुरली, जिले के साबिक़ सदर ई गंगा रेड्डी, नोडा डायरेक्टर अख्तर खान व दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट గా ఉన్నటువంటి ప్రచారక అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి మధుయాష్ గారు విమర్శించడం తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలనట ఎప్పుడు కొనుగోళ్లలో ఎటువంటి సమస్య రాలేదట. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆ రోజు రైతాంగానికి ఏమాత్రం కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మద్దతుగా నిలిచినటువంటి రోజులే లేవు. 6 గంటల కరెంట్లో 3 గంటలు రాత్రిపూట ఇస్తే 3 గంటలు పట్టపగలిస్తే ఎప్పుడు కరెంట్ వస్తుందో ఎప్పుడు కరెంటు పోతుందో దిక్కుదోచం స్థితి. तेलंगाना भर में ट्रेड यूनियन की जानिब से भारत बंद कामयाब। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मुतहदा जिले निजामाबाद में ट्रेड यूनियनों की तरफ से मुनक़िदा हड़ताल का जबरदस्त रद्द-ए-अमल मिलने के बायस मुतहदा अजला में बैंकिंग खिदमात बमशमूल खानगी व अवामी शोबे के अलावा बैंकों में खिदमात मुतासर हुई और इसके अलावा मुतहदा जिलों से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर संगमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर 2 रोज़ा बंद को पुरअमन तौर पर बंद किया, जिसमें अवाम की भरपूर तायद भी शामिल है। నిజామాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా సమ్మె ఉధృతంగా జరుగుతూ ఉన్నది. నిన్న జిల్లా కేంద్రంలో ప్రదర్శన సభ నిర్వహించిన అనంతరం ఇవాళ మండలాలు, డివిజన్ కేంద్రాల్లో కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో సమ్మె జరుగుతూ ఉన్నది. మరి ఇవాళ లేబర్ ఆఫీస్కి వచ్చినటువంటి కార్మిక సంఘాల నాయకత్వానికి కార్మికులందరికీ కూడా ఏఐటీయూసీ పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐటీయూసీ జిల్లా నాయకులు, సిఐటియు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు గోవర్ధన్, ఐఎఫ్టియు జిల్లా కార్యదర్శి ఎం శివకుమార్, ఎల్బి రవి, జల్ల మురళి, మోహన్, ఇఫ్టియు సాయాగౌడ్, విఠల్ పాల్గొన్నారు. सीनियर सहाफ़ी सैयद ज़फ़र अली को हैदराबाद में कारनामा हयात फ़ख्र सहाफ़त अवार्ड से सरफराज करने पर जमीयतुलमा आरमूर अरशद मदनी की जानिब से दफ्तर पर सदर जमीयतुलमा आरमूर में एक तहनीती प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। सीनियर सहाफ़ी सैयद ज़फ़र अली की शालपोशी गुलपोशी अंजाम देते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मौलाना अकरम मुफ्ताही ने मुखातिब करते हुए इनकी खिदमात पर रोशनी डाली, बेहतरीन सहाफ़ी करार दिया। इसके अलावा जमीयतुलमा आरमूर दफ्तर के तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाले जनाब यूसुफ साहब, हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब की भी शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर जमीयतुलमा आरमूर सदर हाफिज शेख इब्राहिम अब्दुल समद साहब, अकरमुद्दीन मुफ्ताही, हाफिज अब्दुल वहीद व दीगर हुफ़ाज़ मौजूद थे। 20 मार्च 2022 जमीयतुलमा हिंद अरशद मदनी साहब दामद खातून शाह आरमूर के दफ्तर पर एक अहम मुशावरती इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर एक खुशी का मौका भी हमारे पास था, वो ये कि हमारे अपने आरमूर मंडल के सीनियर सहाफ़ी और कदीम और तजुर्बेकार सियासत रिपोर्टर जनाब सैयद ज़फ़र साहब को हैदराबाद के अंदर जो 2 साला उर्दू सहाफ़त का जो जश्न मनाया गया उसमें इनकी खिदमात पर इन्हें अवार्ड से नवाजा गया, जिस पर आज जमीयतुलमा हिंद की जानिब से और तमाम अहलियान आरमूर की जानिब से हम उस पर खुशी और मसरत का इजहार करते हैं और दुआ गो है कि जनाब ज़फ़र साहब को अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। इसके साथ साथ जमीयतुलमा हिंद की बारी इनको आज फ़ख्र आरमूर के लक़ब से नवाजी हैं। अल्लाह इनको आरमूर। इख्तिताम से हम नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। तलबा की बेहतरीन मुस्तक़बिल व सरकारी स्कूल्स में भी कॉर्पोरेट तर्ज की सहूलत की फराहम रियासती वज़ीर आला KCR का मकसद। रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, इन्होंने कमरपल्ली मंडल में हमारा गांव हमारा स्कूल के तहत कामों का किया आगाज। ZP चेयरमैन विठल राव और जिला कलेक्टर ने की शिरकत। बेलाल सरपंच की आखिरी रस्मात में की शिरकत व दिया फुर्सा। वो बोधन शहर में मुनाक़िदा साइंस फेयर में शिरकत करते हुए तलबा की हिम्मत अफजाई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर का मसरूफ तरीन दौरा बोधन। कांग्रेस सदर राहुल गांधी और रियासती कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी क्यों किसानों के मसाइल नजरअंदाज कर रहे हैं या वो अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। PUC कमेटी चेयरमैन व आलमर MLA जीवन रेड्डी का सवाल।
कांग्रेस के घमंड व फखर के सबब कांग्रेस हर इंतखाबात में हार रही, क्योंकि कांग्रेस एमपी पार्लियामेंट में तेलंगाना के किसानों की तायद नहीं करे। मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता का सवाल। एसआईओ निजामाबाद की जानिब से 1 अप्रैल को सरकारी मुलाजिमतों के मुताबिक एक रोजा मेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।